Hello everyone, good evening. Today is 3rd of February and today's session is the option adjustment. So what we will be doing today is we will take the current market condition, and based on the current market condition, we will plan some trades, and then we will also plan some possible adjustment which we might need to do in case market goes in. Now let us see what happens in the last few days. You can see in the budget day there was, now these lines we discussed in our last video what they mean. So green zone means there are the demand that the price, if comes near that particular zone, there will be chances that price will go up from that level. So here even we can see, though with that short the Nifty up towards the upside, and the next 2 days we are seeing Nifty has gone up and it is now on the upside move. So this is what we have the information. Now in the daily time frame, let us see whether Nifty can stop or likely to take a halt in the upside. Now downside, we know this is our zone. Even if it comes down for the second time, it will try to take a rest around this zone, which is 17,300 level. And let us see what will be the zone on the upside. So here we have one zone on the upside, and this we call it as a supply. That means if Nifty goes up around 18,200 zone, Nifty likely to take a halt before it pierces it and go to the next level. And next level here is we have in this particular zone, which is 18,600 level. So that is what we have, and that is our analysis for the Nifty chart. And what we will be doing next is, based on this analysis, we will try to make a plan first, and then we will analyze the plan. And then in the next level, we will also try to find out, in case Nifty shot up violently or it comes down, whether we need to do something. That will be our topic for the day. First, let us plan our trade based on our analysis. Trade vehicle plan. So Nifty is now on the upside move. So what we are expecting is either Nifty can be little sideways with the upward bias, and it can go and touch 18,100 zone. Maybe it can touch even tomorrow or within 2-3 days. So that is our impression from the chart, because as Nifty already tried to touch our demand, but it was not able to touch here. So we are not expecting really in a soon it is likely to come down when the budget was quite good, and due to the Adani issue, the Nifty actually was coming down, but it looks like that has been already factored in. So that is our analysis. So what is Nifty analysis? So हमारा जो Nifty analysis है ये है अभी, it is the movement is upside, or even if it is sideways, it does not look like it is really going sharp upside. So upside में हमारा जो resistance level है और जो supply level है वो होगा अभी around 18,100 to 18,200. So ये upside level daily time frame में ये है अपसाइड लेवल 18,100 to 18,200. ये होगा हमारा इमीडिएट लेवल. अगर डाउन साइड में आता है तो it can be the sideways, but we are not really expecting it is really going to come down drastically, because it has already came and from there it has bounced back. So downside में 17,400 will be a good level. So actually based on the chart it is 17,400, लेकिन 17,300, but downside हम लोग 18,400 को पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो 17,300 का पास में आके गया ऊपर. तो अभी के लिए देयर आर बी लेस चांसेस. अगर बहुत खराब कोई न्यूज आता है तो हो सकता है वो टच करेगा 17,300, नहीं तो अराउंड इट विल बी 17,000 ओनली. 17,400 विल बी आवर डिमांड लेवल.
तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। और ये भी हो सकता है ये उसको पियर्स करके ऊपर का तरफ भी जा सकता है, और देन इट विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल इज 17,500। सो 17,500, उसके बाद 17,000, सॉरी 18,500। ये हो गया हमारा निफ्टी एनालिसिस। ओके, अभी इसका बेसिस पे हम लोग क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट अपसाइड मूवमेंट में है तो हम लोग ऑफ कोर्स अपसाइड ही ट्रेड प्लान करेंगे, और लिटिल बिट साइडवेज भी हो सकता है अगर कोई खराब न्यूज़ भी आता है तो, अनलेस इट इज वेरी मच बैड न्यूज़। तो दैट इज आवर एनालिसिस और प्रोजेक्शन। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो अभी निफ्टी का जो लेवल है वो 17,854। सो लेट अस, we will do some spread. So what spread we can do? So we will buy, अगला जो एक्सपायरी है उसका नेक्स्ट एक्सपायरी को प्लान करेंगे। तो बाई नेक्स्ट एक्सपायरी होगा 16 Feb। तो अभी जो करंट लेवल है उसको पकड़ लेते हैं 18,400, 18,000, सॉरी 17,850, 17,850, 16 फरवरी एक्सपायरी का इसको ले लिया। और ऊपर में हम लोगों का क्या प्रोजेक्शन है, 18,200 तक जा सकता है निफ्टी, राइट। सो 18,200 अगर सेल करते हैं इसको, देखते कितना प्रीमियम मिलता है। ओनली 40 रुपये मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हैं, तो 300 पॉइंट्स ऊपर होगा। तो आइडियली इसके हिसाब से दिस विल बी गुड। लेकिन प्रीमियम अगर बहुत कम है तो हम लोग ज़्यादा पेमेंट दे के प्लान करना नहीं चाहते हैं। तो 17,400 पुट का कितना प्रीमियम मिल रहा है देख रहे हैं। 17,400 में वो भी 40 रुपीज, 46, अराउंड 50 मिल रहा है। वो देखते हैं 18,100 अगर लेते हैं तो 18,100 कॉल अगर इसका बेसिस पे प्लान करते हैं तो देखते हैं हाउ इट विल लुक इन द पे ऑफ डायग्राम। तो हम लोग इसको बाय करेंगे 17,851 लॉट, और इसको एक लॉट सेल करेंगे, उसको एक लॉट सेल करेंगे, वो तो डेबिट होगा। लेकिन देखते हैं, इसको बाय करना है 16 Feb का, तो इसको बाय कर लिया एक लॉट 18,100 कॉल, इसको एक लॉट सेल कर दिया तो हो गया। अभी इसको एनालिसिस करें तो देखते हैं उसका पे ऑफ में कैसा आएगा। तो पे ऑफ अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ऑफकोर्स हमारा प्रॉफिट होगा। ये अगर 18,000 में टच करते 18,100, तो देर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 5,000 रुपीज। लेकिन अगर नीचे आता है तो एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस हमारा तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ओनली 2,500 इज शोइंग, बट M2M लॉस कैन बी लाइक 10,000 वायलेंटली अगर नीचे आता है तो। लेकिन ये दिखता नहीं है जो आने वाला है, ऐसा तो दिखता नहीं है। सो दिस इज वन थिंग वी कैन डू। what other things we can do if we want to plan something like जो अगर निफ्टी नीचे आता है तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अभी तो लगता नहीं है निफ्टी ऊपर ही जाने वाला है, और एटलीस्ट इन नेक्स्ट फ्यू डेज, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो उसका बेसिस पे हम लोग को नीचे की तरफ थोड़ा सा रिस्क लेके ये प्लान तो कर सकते हो। सो एडवांटेज ऑफ दिस इज निफ्टी अगर ऊपर की तरफ धीरे धीरे भी जाता है तो उसमें प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ओके, दिस इज वन प्लान। लेट अस सी और क्या प्लान कर सकते हैं। 18,200 का जगह हम लोग 18,100 सेल करते हैं तो उसमें क्या होगा, डाउन साइड रिस्क थोड़ा सा कम होगा, अप साइड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम होगा। लेकिन उसमें भी हम लोग अराउंड एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस अराउंड 9,000 मिल सकता है। अगर दोनों हम लोग सेल करते हैं और एक बाय किया तो क्या होगा, इट विल बी लाइक ए डोम काइंड, डोम शेप। तो हियर ये भी 10,000 मिलेगा, लेकिन इसका एडवांटेज ये है इसका डाउन साइड रिस्क कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या एडजस्टमेंट करेंगे से, ये हम लोगों ने प्लान किया। अभी निफ्टी नीचे का तरफ आ रहा है, ओके। तो इधर उस टाइम में क्या होगा, 3,600, तो उसका M2M लॉस आएगा। तो उस टाइम में हम लोग ये ऊपर जो सेल किया था उसका उसमें प्रॉफिट आएगा, राइट। तो उसका प्रॉफिट बुक करके हम लोग उसको नीचे का तरफ लेके आ सकते हैं। तो दैट विल बी द फर्स्ट एडजस्टमेंट। व्हाट विल बी आवर एडजस्टमेंट इन दिस केस इज, नाउ विल डू एडजस्टमेंट। हमारा प्रॉब्लम क्या हो सकता है। सो निफ्टी तो अच्छा ऐसे पूरा नहीं लिखे हम लोगों ने। सो बाय किया एक लॉट, इसका प्राइस 165, और सेल किया
18,100 और सेल 16th Feb 18,200 और नीचे भी हम लोगों ने एक सेल किया, सेल 16th Feb 17,400। अभी क्या सिनेरियो हो सकता है, निफ्टी कम्स डाउन, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, विल बुक ऊपर का जो स्ट्राइक है उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा ना। अगर निफ्टी नीचे आता है तो ये कॉल का प्रीमियम कम हो जाएगा, तो हम लोग पहले करेंगे ऊपर का वाला जो कॉल है, मतलब 18,200, तो इसको बुक करेंगे, मतलब इसको बाय बैक कर लेंगे, उसमें प्रॉफिट मिलेगा। और बुक करने के बाद हम लोग, अगर निफ्टी और नीचे आता है तो वी कैन सेल सम लोअर स्ट्राइक। अभी 18,100 तो अभी है ना उधर उधर, तो हम लोग इधर सेल कर सकते हैं 18,000, फेव का 18,000 कॉल उसमें सेल करेंगे। अभी उस टाइम में क्या प्राइस है उसका हिसाब, अभी इसका प्राइस का कोई वो नहीं है, उस टाइम में इसको बुक करेंगे। तो अभी ये 40 रुपीज़ है ना, शायद उस टाइम में वो से 20 रुपीज़ हो जाए, तो एट दैट प्राइस हम लोग उसको करेंगे बुक। और इसमें अगर इसको 20 रुपीज़ मिल जाएगा तो इधर शायद ये 30 रुपीज़ में हम लोग सेल कर देंगे, कर सकते हैं। अभी फिर भी नीचे आता है तो हम लोग, this can also be done with the other strike, so that will be our adjustment on the downside. Okay, और क्या हो सकता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन, निफ्टी गोज अप, तो उसमें अगर निफ्टी ऊपर ही जाता है तो इतना तक हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। वो धीरे धीरे जाता है तो इट विल नो प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम इज अगर वो बहुत भारी रहता, 500 पॉइंट्स गैप अप हो गया, 600 पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का प्रॉफिट ही होगा। लेकिन ये अगर क्रॉस कर जाए तो थोड़ा सा लॉस दिखाएगा, M2M लॉस। बट इधर का ऊपर भी चला गया, सो अराउंड 18,500 में निफ्टी चला गया, तो उस टाइम में हम लोगों को M2M लॉस दिखेगा। सो डाउन अप साइड में अगर निफ्टी चला जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देयर आर ओनली टू थिंग्स वी कैन डू। एक तो हम लोग फ्यूचर बाय कर सकते हैं, नहीं तो कॉल बाय कर सकते हैं, नहीं तो पुट सेल कर सकते हैं। तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, तो अगर ऊपर जाता है तो उसके हिसाब से बेस्ड ऑन मतलब कितना दिन बाद वो ऊपर का तरफ गया, वो भी डिपेंड करेगा हम लोग को स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए। अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 दिन में अगर 18,500 क्रॉस कर जाता है निफ्टी, लगता तो नहीं है लेकिन कर जाता है, तो उस टाइम में हम लोगों को M2M लॉस दिखेगा। उस टाइम में हम लोग को थोड़ा एग्रेसिव मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो उस टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इधर एक लॉट हम लोगों ने ज्यादा सेल किया ना, देखो 2 लॉट सेल किया, इसके लिए हम लोगों का अपसाइड में क्या दिखा रहा है, अपसाइड में हम लोगों को लॉस हो सकता है अगर निफ्टी बहुत ऊपर जाता है तो। लेकिन इसको अगर एक लॉट हम लोगों ने सेल किया तो हम लोगों का कोई अपसाइड का रिस्क नहीं रहेगा। तो इन दिस केस देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी। अगर ये गोज अप, अगर ये स्लोली ऊपर जाता है, गोज अप, अगर ये ऊपर जाता है, गोज अप फास्टर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग दैट। तो इन दैट केस हम लोग इसको बुक कर लेंगे पहले, जो 17,400, अगर निफ्टी 18,500 चला जाता है ना, तो ये तो प्रीमियम बहुत ही कम हो जाएगा, ये तो 10 रुपये हो जाएगा। तो इन दैट केस वी विल बुक, इसको बुक करेंगे पहले, इसको बुक करके डिपेंडिंग ऑन कहाँ तक प्राइस गया वो पर्टिकुलर लेवल पे उसको सेल। अगर 18,500 चला चला गया, राइट, सो देयर आल्सो देन वी कैन सेल इसका 18,500 अराउंड 300 और से 400 500 तक चला गया, वो एट द मनी हम लोग सेल कर सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे सेल कर सकते हैं। अभी कहाँ पे निफ्टी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग कौन सा स्ट्राइक लेंगे। सो इफ, ये तो हो गया फास्टर, तो अगर निफ्टी अभी आफ्टर हाउ मेनी डेज, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो इफ निफ्टी गोज टू अराउंड 18,500 और 18,000 से 400, ये बुक करने के बाद वी कैन सेल 18,700 पुट, तो उसके बाद हमारा जो रेंज है ना वो बढ़ जाएगा। और क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, वी कैन
add one call spread, ये कर सकते हैं, और we can add one naked call. So these are the possible combinations. So we will do one thing, that how it will change. See, हमारा ये चल रहा है, right? अभी तो अगर ऊपर का तरफ जाता है तो अभी तो वो सिमुलेट करना मुश्किल होगा। अगर निफ्टी इधर आ गए तो इसका तो इधर तक आ जाएगा, तो उस टाइम में हम लोग अगर 18,100 का जो पुट है अगर वो सेल कर देते तो अपसाइड का जोन जो है ना वो बढ़ जाएगा। लेकिन अभी मैंने अगर ऐड किया तो दैट विल बी फॉर प्राइस फॉर दिस टाइम विच इज फॉर टुडे। उस टाइम में वो प्राइस तो चेंज हो जाएगा, सो दैट विल बी, एंड सारे प्राइस स्ट्राइक का सारे लेग का प्राइस चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और जस्ट फॉर एन इलस्ट्रेशन, अगर इसमें से देखा अभी 307 दे रहा है वो, अभी उस टाइम में जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये तो 307 नहीं रहेगा, ये तो बहुत कम हो जाएगा, तो ये तो पूरा पूरा चेंज हो जाएगा ये। तो इस सिचुएशन में देखो ऊपर का क्या होगा, ऊपर हमारा जो रेंज है वो बहुत एक्सटेंड हो गया। सो दीज विल बी आवर द पॉसिबल एडजस्टमेंट सिनेरियो बेस्ड ऑन आवर प्लानिंग। अगर नीचे साइडवेज है तो वी रियली डोंट नीड टू वरी, सो वो भी कर लेंगे एडजस्टमेंट सिनेरियो। सो अगर निफ्टी साइडवेज फॉर नेक्स्ट से 7 days, ऑलमोस्ट 2 वीक का पास आ गया, उस टाइम में भी वो साइडवेज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल डाउन। दैट मीन्स इधर 18,200 सेल किया था उसको बुक कर लिया, और देन वी कैन स्क्रॉल डाउन एंड सेल से 18,000 कॉल, तो हमारा उसमें से जो डेबिट है वो कम हो जाएगा, तो इट विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। और एक चीज है उसमें पुट का भी साइड कर सकते हैं, सो बुक पुट सोल्ड एंड स्क्रॉल अप। स्क्रॉल अप मीन स्क्रॉल अप करके सेल करना। तो इधर हम लोग 17,400 पुट सेल किया था 46 रुपीज में, अगर निफ्टी किधर भी नहीं जाता है तो टाइम डिके हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बुक करके 17,400 सेल कर सकते हैं। सो दीज आर द एडजस्टमेंट सिनेरियो। ओके, so let us take some questions based on whatever we discussed. No questions so far, Ponto जी। ग्रेट, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम में प्राइस चेंज होएगा स्ट्राइक का, और इसका लॉस होगा, नहीं तो ये थोड़ा प्रॉफिट होगा, जो भी होगा, तो उसके हिसाब से उस टाइम का हिसाब से इसको कुछ एग्जिट करके उसको लेना पड़ेगा, तो इट विल बी लाइक अ लाइव थिंग। So I will share this with you, and then you can plot it, and then अभी मार्केट नेक्स्ट 2 वीक में जैसे जाएगा तो इसके हिसाब से हम लोग उसको लाइव, इसको लाइव डायरेक्टली मतलब ट्रेड पैनल पे ले सकते हैं कि इसको जस्ट वर्चुअली सेंसिबल पर लाइव ट्रेड पैनल में, मतलब लाइव ट्रेड पर इसको जो आपने बताया सेटर इसको लगा लें कि इसको सिर्फ नहीं कर सेंसिबल सकते पे कर एज ए सकते, वर्चुअल। बट इसका प्रॉब्लम ये होगा, अगर मार्केट सेम जगह पे खुलता है कल मॉर्निंग और अराउंड उस टाइम में ले लेते हो तो दिस इज अ ट्रेडेबल ट्रेड। लेकिन प्रॉब्लम है अगर निफ्टी का गैप अप हो गया 100 पॉइंट ऊपर खुला, तब जाके ये स्ट्राइक वो गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ है। क्योंकि ये वैसे गैप अप की 18,000, प्रोबेबिलिटी लग रही है। हाँ तब मतलब फिर भी ले सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग को स्ट्राइक सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि तब तो 70,800 का प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन राइट, एडवांटेज ये है, इसका प्राइस भी हम लोग इसको सेल करें ये भी अच्छा प्राइस मिलेगा, लेकिन इसका प्राइस कम हो जाएगा। तो मतलब मार्केट अगर सेम जगह पे खुलता है तो इवन द सेम स्ट्राइक विल वर्क, लेकिन अगर ऊपर खुल गया और नीचे गैप डाउन हो गया तो उसके हिसाब से आफ्टर वी लेट इट सेटल, थोड़ा सेटल होने देना है मार्केट को, उसके बाद वो स्ट्राइक लेना है, ठीक है। तो अच्छा मंडे तो होगा, सो वी कैन ऑल्सो डू दैट। आई कैन पोस्ट इट टू यू दैट बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, और से अगर सेम जगह पे खुलता है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स इधर उधर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 100-200 पॉइंट इधर उधर हो गया देन वी हैव टू चेंज द स्ट्राइक। करेक्ट। जो हम लोगों ने मेथोडोलॉजी डिस्कस किया वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन उसके हिसाब से ओके देन आई विल शेयर यू ऑल दिस, एंड आप ऐसे तो इन द सेंसिबल और कोई प्लेटफॉर्म पे लगा ही लो,
or we will ठीक also try to do it. So I will try to post you also. You can take the live trade and then we will see how it goes. थैंक यू Thank गुड you नाइट so much. Good night. गुड नाइट